कुछ आपके पास में क्लाइंट ऐसे भी आते होंगे कि मेरा 1 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है, 10 या 20% आप लीजिए और बाकी सारा सेट भी कर दीजिए। क्या उस गोलगप्पे वाले ने 40 लाख रुपए टैक्स छुपाया या नहीं छुपाया? हमारी कंट्री का जो टैक्स है वो एक साल में इन टर्म्स ऑफ जीएसटी कह लीजिए या टोटल ओवरऑल टैक्स कर लीजिए, सरकार के पास कितना टैक्स जाता है? hundreds and thousands of crores basically. पर्टिकुलरली इस प्रोफेशन को चूज करने का क्या लॉजिक था? Okay, and when we are talking about this company, so we just want to know that what are the all services which you provide to your customers. Fundraising, तो वो क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से स्टार्ट होता है और कैसे फुलफिल होता है? ये आपने कंपनी कब स्टार्ट किया, कितने लोगों के साथ स्टार्ट किया और क्या वो इनिशियल फंडिंग थी जो आपने खुद इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर? आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में और भी ऐसे लोग हैं जो सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? हमारे साथ मौजूद है हमारे वो खास मेहमान एडवोकेट श्रेयन दत्ता और CS आयुषी वर्मा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेंटर फॉर बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप चिट चैट सेशन में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे वो खास मेहमान एडवोकेट श्रेयन दत्ता और CS आयुषी वर्मा। श्रेयन और आयुषी को फाउंडर हैं द लीगल ओएसिस कंपनी के। और ये द लीगल ओएसिस कंपनी क्या करती है? ये लीगल सर्विस प्रोवाइड करती है, ये CS सर्विस प्रोवाइड करती है अपने बिजनेस कस्टमर्स को। सो अब हम बात करेंगे आगे की श्रेयन और आयुषी के साथ में। सबसे पहले आयुषी और श्रेयन का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो पर। और आज हम जानेंगे कि आपने ये जर्नी किस तरह से स्टार्ट की और वो क्या आइडिया था जिसने आपको ये लीगल फर्म स्टार्ट करने का एक थॉट दिया। Hi, thank you so much for inviting us. So, for the reason for choosing this profession is basically we have been drawn to the intricacies of law and corporate governance. So, the turning point was realizing how complex the legal landscape can be for businesses and individuals. So, we just wanted to create a space where people can find trusted legal advice and help with navigating regulations. So, it's all about making the law a bit accessible and easy for everyone to understand. So that was the reason. पर्टिकुलरली इस प्रोफेशन को चूज करने का क्या लॉजिक था? To help people, basically काफ़ी एम्बिग्विटीज़ हैं। अगर लॉ के लैंडस्केप को देखा जाए तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव में हम कवर होते हैं नहीं। सो आई जस्ट वांटेड टू गाइड पीपल एज टू क्या उनके ऊपर एप्लीकेबल है, वेयर कैन दे फाइंड अ सेफ स्पेस। दैट्स द मेन मोटो। Okay, and if we talk about the name and ideology of this name, behind this name, the legal oasis. Yeah, that's the fun part basically. So जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एक safe space I wanted to create. Actually we both intended to create that. So Oasis basically is a place in the middle of a desert. जो people जो travelers होते हैं who are lost, who are uncertain और उनको एक direction चाहिए होता है तो they come across that oasis. So oasis is a place where you can find everything to survive, like water, shade, and peace of mind. So we just wanted that for our clients in this legal world. So just like an oasis, we aim to provide all the resources. We plan to help them navigate through all the directions and thrive in this complex legal terrain. Basically, that's the main intention behind the name Legal Oasis. Okay, and when we are talking about this company, so we just want to know that what are the all services which you provide to your customers? Ayushi, can you please explain this? Yes. So basically, our services include corporate governance, drafting of agreement, and related to corporate litigation, basically, and fundraising to the startups and all. This is what we do. अगर हम एक कॉमन बात करें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, मतलब और ये किसी भी सिटीजन को कैसे हेल्प करता है? So basically, managing a business operation in such a way so that the shareholders' interest will be protected. Okay. जैसे अगर आप जैसे वो होता है, मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के अंदर फंड्स इन्वेस्ट किए, तो यू ठीक है। वांटेड टू प्रोटेक्ट दोज इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। इट मीन्स आपके लीगल राइट जो है वो इफेक्ट ना हो, कोई भी कंपनी के अंदर डिसीजन इस वे में ना लिया जाए जिससे आपका जो फंड लगाया हुआ है वो मिसयूज हो सके उस फंड्स का।
That's the way. अच्छा This is all about corporate governance, means governing the company in such a way to protect the interests of the stakeholders of the company. अच्छा एंड इफ वी टॉक अबाउट द फंड रेजिंग, सो वो क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से स्टार्ट होता है और कैसे फुलफिल होता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। So fundraising is all about whenever a person thinks of starting his own business, तो उस टाइम पर उसके पास फंड्स की स्कैर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप किसी बिल्कुल। इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते हैं, यू नीड सम बेसिक प्रोफेशनल हेल्प एटलीस्ट, तो उस केस के लिए भी आपको एक बेसिक एक कैपिटल की जरूरत होती है। तो इनिशियली तो यू कैन स्टार्ट अ फर्म विद अ बूटस्ट्रैप कंपनी, जिसके अंदर आप अपना पैसा कुछ लगाते हैं। ठीक है। Later on, you can raise some funds from your family and friends, where you can raise without any agreement. They just give you funds on basis of trust, because ट्रस्ट just या relation रिलेशनशिप, होता है उनके साथ। एग्जैक्टली। बट अगर आप एक थोड़े हाइयर स्टेज पे जाते हैं, व्हेन यू नीड मोर फंड, सो Yeah. उसके लिए अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपने एक बेसिक वो क्रिएट कर दिया, स्टेज क्रिएट कर दिया है, उसके बाद बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए यू नीड मोर फंड एंड इट Yeah. इज अवेलेबल ऑन सम मोर स्ट्रिंजेंट टर्म। तो उसके लिए आपके पास इन्वेस्टर्स होते हैं, लाइक सीड इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड। तो हमारा Okay. काम होता है उस वेंचर कैपिटलिस्ट, उस इन्वेस्टर से आपको मिलवाना, देन उनके बीच में टर्म की नेगोशिएशन होती है, वो कैरी आउट करना, और फिर उससे रिलेटेड जो कंप्लायंसेस होते हैं डिफरेंट रिपोर्टिंग अथॉरिटीज को, बी इट आरबीआई, बी इट एमसीए, तो जितने भी रिपोर्टिंग कंप्लायंस होती है, इवन टू द सेबी, तो इन सबको रिपोर्टिंग कंप्लायंसेस को मैनेज करना भी हमारा काम है। सो This is- इन्वेस्टर और बोरोवर आप दोनों को मैनेज करने का काम करते हैं, तो क्या दोनों Yes. का फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी होता है या वर्चुअली भी सर्विस आप अवेल कर सकते हैं? No, virtually it can be possible virtually as well, क्योंकि अब जो मोस्टली बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं प्रोफेशनल के, दे आर पैन बेस्ड, so you just need to come on a Zoom call, you can discuss agreement, you can discuss terms as well, क्योंकि जब भी फंड्स आते हैं, there are several negotiations are required at the initial stages, कि आप किस टर्म पे फंड्स लगाएंगे और दूसरा वाला उस टर्म को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। उन Okay. दोनों चीजों को नेगोशिएट करने के लिए यू नीड टू मीट मेनी अ टाइम्स, तो इट इज नॉट नेसेसरी। कई बार ऐसा होता है कि मुंबई का इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन दिल्ली कंपनी, तो अब बार बार पॉसिबल नहीं होगा कि ही नीड्स टू कम डाउन टू दिल्ली और इन्वेस्टर को वहां जाना पड़े। एग्जैक्टली। दोनों ही बिजनेस अपने लेवल पे मैनेज करते हैं, तो इट्स बेटर टू कम ऑनलाइन। वी जस्ट ब्रिज द गैप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, वी नीड टू कम्युनिकेट टू द इन्वेस्टर्स एज वेल, ताकि वहां से उनकी इंट्रिकेसीज को समझ पाए। उसके बाद सेम चीज दो अपनी कंपनीज को समझाना, वो सारी ठीक। चीजें मैनेज करना भी हमारा पार्ट है। सो ये तो बहुत कन्वीनियंट हो गया किसी भी कस्टमर्स के लिए। यस, डेफिनेटली। पहले ये चीज पॉसिबल उतना नहीं होता था, क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते थे। हमारा ये रहता है कि अगर एक मीटिंग जरूरी भी लगे तो टीम से कोई है, अगर जरूरी लगता है कहीं, वी कैन विजिट एज वेल, बट वी प्रेफर कि टाइम सेविंग के लिए यू कैन मीट ऑनलाइन एंड मेनी अ टाइम्स, क्योंकि नेगोशिएशन इतनी बार होती है, अग्रीमेंट के अंदर रीड्राफ्टिंग की जरूरत इतनी बार होती है कि इट्स बेटर टू कम ऑनलाइन एंड क्लोज द डील, एंड इट्स वेरी इजी। कई बार तमिलनाडु, तेलंगाना के जो क्लाइंट्स है, दे आर कमिंग टू मुंबई प्रोफेशनल्स एज वेल, so it's all about trust. You don't need to meet in person as well. सो आई मस्ट से कि ये सारी चीजें ऑनलाइन ज्यादा स्टार्ट हो गई कोविड के बाद में। So Yes, we definitely. all must The major thank to change was COVID. happened after that. Yes. So we all must thank to COVID. Right. So अगर indirectly. फंड्स की बात हो रही है तो थोड़ा बहुत फंड्स के बारे में मैं भी सोच रहा हूँ, और Okay. मुझे बताइए कि क्या वो मिनिमम फंड्स होता है जो आपकी सारी वर्किंग के बाद में इन्वेस्टर अपने बायर को देते हैं, क्या वो मिनिमम लिमिट होती है और क्या वो मैक्सिमम लिमिट होती है? So there is no, see, it totally depends upon the what kind of services or products you are providing in the market. नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ फंड रेजिंग। अभी जो हमारा फंड रेजिंग का पार्ट था, तो फंड रेजिंग में मिनिमम क्या मिल पाता है और मैक्सिमम क्या मिल पाता है, और वो क्या So- कंडीशंस होती है जिसके ऊपर वो अमाउंट डिसाइड होता है? Okay, so this is what I was saying, ki there is no such minimum or maximum amount that is specified in the market. There is no such legal limit. If you want to raise an X amount from the market or from the investor, you need to explain them, sir, I am going to launch this product in the market. For this, I need such an amount. You need to prove them that this is going to be my expenses,
and this sort of a fund I require, or this amount of fund I require. If investor agree to invest those amount, then it will be okay for that. There is no such legal limit for this. Basically, investor wants to invest more fund in your company if you are already having invested your funds in the company. Means a bootstrap firm is required to get more investment from the market. So initially, usually जो देखा गया है, it will be around 15 to 20 lakh of investment you can get in friends and family round. This is the basic amount you can easily get from your friends and family round. But yes, it may increase to or at a venture capital to 8 CR to 10 CR. Okay. Yes. ठीक है. All right. So Ayushi, you started this company as you are a co-founder of this company. So ये आपने कंपनी कब स्टार्ट किया, कितने लोगों के साथ स्टार्ट किया, और क्या वो इनिशियल फंडिंग थी जो आपने खुद ही इन्वेस्ट किया इस कंपनी के अंदर? Okay. So we started this firm in 2020 with 3 individuals and with a limited capital. But now we are working with more than 20 professionals on board, and along with some interns. And the third question was? So कितना पैसा आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया? Okay, initially it was started with just 1 lakh rupees, because being in a service sector firm, you will not require much of a fund, considering the service sector. But later on, you need to buy out some offices and all. So the capital amount increase over the period of time. So जो रेगुलर एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद तो फिर कोई हाँ, लिमिट की होती है. वो होते हैं. So currently you are having a team size of 20 people. Yes. And this is itself More in than Delhi 20 या फिर plus. pan India? Yes, we are working on pan India basis. In pan India. So Ayushi, in starting days, जब आपने 2020 में स्टार्ट किया बिजनेस, so probably day one में कोई भी कस्टमर आपको नहीं जानता. So how you gather the customers, like people references, दोस्तों से बोला, फैमिली वालों को कनेक्ट किया, कैसे आपने अप्रोच किया? like? Okay. So I would like to mention Shreyan here to give the answer. Shreyan, would you like to give the answer? Yes, absolutely. So, in the beginning days, as no one had heard about us, so it was just word of mouth passing through, and referrals came in. Somebody referred their colleague to us, somebody referred their friend to us, somebody referred their family member to us. So gradually, slowly and steadily, we started building this network. So once the key members put in, and then they helped us earning trust and gaining the first-hand experience with the client. So slowly and steadily, our credibility also grew in the market. Oh, great. Yes, it's So, basically depends upon building relationship with your client. That's the most important thing over the period. One thing we have observed now, before getting professional with them, we need to build a relationship with them. That's the very good. only thing which help us in gaining more clients in a shorter period of time. That's the most important thing. क्या होता है? सो आयुषी, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, एज यूर ए कंपनी सेक्रेटरी, सो बेसिकली इसका रोल, कोर रोल क्या होता है कंपनी सेक्रेटरी का? ओके, यस, काफी सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट इज द Exactly. कोर रोल ऑफ अ सीएस. सो बेसिकली एट द टाइम ऑफ फंड रेजिंग, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हमें मार्केट से पैसा लेना है, वी नीड अ सीए. यू नीड अ सीए, बट बेसिकली इन ऑर्डर टू मैनेज दोज कंप्लायंसेस, मैनेज दोज फंड्स, यू नीड अ कंपनी सेक्रेटरी. क्योंकि जब आपके अकाउंट में फंड्स आएंगे, उससे रिलेटेड कंप्लायंसेस जो होंगे, किस किस को रिपोर्ट करना है, लोगों को नहीं पता होता कि रिपोर्ट एक्चुअल में किसको होना था. और जब वो पेनल्टी आती है, तब आपको समझ में आता है कि इसको रिपोर्ट करना था, इतने दिन के अंदर करना था, जो आप नहीं कर पाए. आपने फंड्स बाहर निकालिए, मान लीजिए आपकी कंपनी के अकाउंट में एक्स अमाउंट आया है, उसमें से कुछ डायरेक्टर ने अपनी सैलरीज में निकाला और कुछ एडिशनल अमाउंट निकाला, और उसे नहीं पता था कि वो किस फॉर्म में निकला. तो आपको रिपोर्टिंग किस अथॉरिटी को करनी है, कौन से फॉर्म फाइल करने हैं, उसके लिए एक बोर्ड मीटिंग होनी थी, जनरल मीटिंग होनी थी, आपको नहीं पता था. तो these are some internal management compliances which you need to take care of while getting the investment. क्योंकि at times क्या होता है कि आपने एक SHA एंटर किया अपने इन्वेस्टर के साथ, आपने कुछ टर्म्स उसके साथ अग्री करी थी कि मैं जब इतना अमाउंट निकालूंगा या इससे क्रॉस करूंगा तो मुझे इंटीमेट करना पड़ेगा. बट कंसिडरिंग अ सीएस पर्सपेक्टिव, इसको पता होता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट लिया तो आपने अग्रीमेंट भी किया होगा, उसके अंदर कुछ टर्म्स भी होगी. यू नीड टू कंडक्ट अ बोर्ड मीटिंग, यू नीड टू इन्फॉर्म योर शेयर होल्डर. जो नहीं पता चलता, जिसकी जहां पर रोल आता है कंपनी सेक्रेटरी का,
उसे इन्फॉर्म करना होता है कि सर इस पॉइंट पर आपको एक जनरल मीटिंग करनी है, यू नीड टू इन्फॉर्म टू दोज शेयर होल्डर्स सो दैट आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना आए कि यहाँ पर इन्फॉर्म करना था आपने नहीं किया और शेयर होल्डर आप पे अग्रीमेंट ब्रीच का कोई वो लगाए, एलिगेशन लगाए। तो बेटर ये यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि आपको इन फ्यूचर उन चीजों को फेस ना करना पड़े जो आप बिना किसी सोच के चलते कि आपने बस फंड्स निकाले, यू आर नॉट अवेयर कि उसके रिpercussions क्या होंगे। दैट्स द होल थिंग, मीन्स मैनेजिंग योर फंड इन मोस्ट लीगल वे। अंडरस्टूड। सो आपकी कम्युनिकेशन समझ में आया कि जितना इंपॉर्टेंट रोल एक सीए का है उतना ही इंपॉर्टेंट रोल या उससे कहीं ज्यादा एक कंपनी के अंदर सीएस का है। सीएस का होता है क्योंकि सीएस की रिक्वायरमेंट सिर्फ वहां आएगी, सीए की रिक्वायरमेंट सिर्फ वहां आएगी जहां पर आपको बुक्स मैनेज करने हैं। आपने खर्चे कर दिए, देन यू नीड टू मैनेज, सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है कि आपको उसको बुक्स में कहाँ दिखाना है। बट जब खर्च कर रहे थे उससे प्रायर के जो कंप्लायंसेस होते हैं वहां पर सीएस का रोल होता है। दैट्स द थिंग। और एक सीए इंडिविजुअल पार्ट पे या कंपनी पार्ट पे रोल प्ले करता है, बट एक सीए सिर्फ कंपनी पार्ट रोल प्ले करता है। यस, यस, दैट्स द थिंग कि आप सीएस का रोल मेजरली कॉर्पोरेट्स में ज्यादा रहता है, बिजनेस ओनर्स पे ज्यादा रहता है जिन्होंने फंड्स लिए हैं, क्योंकि वहां पर अग्रीमेंट के कंप्लायंसेस हो जाते हैं। इवन आप बाहर इंडिया से बाहर फंड्स ले रहे हैं, इंडिया के फंड्स आपके बाहर जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो उस केस में भी सीएस का रोल आता है, क्योंकि आरबीआई के जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं दे आर सोलली मैनेज बाय अ कंपनी सेक्रेटरी। ग्रेट। सो आयुषी, थोड़ा सा और जानना चाहेंगे आपसे कि कंपनी सेक्रेटरी जो कोर्स है वो करने के बाद में एक एप्लीकेंट के पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है, करियर अपॉर्चुनिटीज से मैं बात जानना चाह कि वो क्या क्या और किस डायरेक्शन में आगे मूव कर सकता है। So, being a company secretary, I would suggest to there are 3-4 main professions which someone can pursue after being a CS. So, one is working with a listed company and handling the compliances of a listed company, क्योंकि वहां पर सबसे एक कहते हैं ना कि टॉप मोस्ट लेवल पे रोल जो होता है कंपनी सेक्रेटरी का, दैट इज इनटू अ लिस्टेड कंपनी, जहां पर काफी सीनियर पोजीशन रहती है। सेकेंड थिंग इज मैनेजिंग द स्टार्टअप कंपनीज, जहां पर उनको बेसिक, क्योंकि जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो डायरेक्टर्स और उनके बिजनेस ओनर्स को नहीं पता होता है एक्चुअल में कंपनी बनानी कैसी है। एट टाइम्स हमारे पास 4-4, 5-5 साल बाद कंपनीज आती हैं कि हमारे सीए ने तो ये काम किया ही नहीं था, वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट। आई एम नॉट अगेंस्ट सीए, बट एक्चुअल में उसका रोल नहीं है और वो लोग उस चीज को लेके अवेयर नहीं है, क्योंकि Well, दैट वाज नॉट द रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। So internally सारा मैनेज किया। तो सेकंड थिंग इज मैनेजिंग द कंप्लायंसेस ऑफ ऑल दी स्टार्टअप। जब डे वन से आपके माइंड में आता है कि मुझे कंपनी ओपन करनी है, यू नीड टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी। right. एंड द थर्ड थिंग इज सेबी, जो वो होते हैं म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स होते हैं, तो उन कंपनीज के कंप्लायंसेस मैनेज करना भी, जो सेबी रिलेटेड कंप्लायंसेस होते हैं रिलेटिंग टू फंड, इन्वेस्टमेंट फंड एडवाइजर्स, उसमें एक कंपनी सेक्रेटरी का मेजर रोल होता है, क्योंकि जो सेबी के लॉज होते हैं रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, वो पर्टिकुलरली पढ़ाए जाते हैं सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी को। तो वो सारे भी आप उस रोल में भी जा सकते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज, अभी सीएस के काफी सारे कोर्सेज इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड है, वो भी अगर आप परस्यू करना चाहें तो वो एग्जाम क्लियर करके यू कैन गो फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी आउटसाइड इंडिया एज वेल, इन यूएसए एंड सिंगापुर, दीज आर 2 कंट्रीज। क्या बात है। सो आयुषी एंड श्रेया, आपसे एक और क्वेश्चन आता है कि यू वर्क विद स्टार्टअप एज वेल, और स्टार्टअप का सबसे पहला एक मोटो होता है कि कम से कम मेरा एक्सपेंसिव दो, कम से कम इन्वेस्टमेंट में मेरे को मैक्सिमम आउटपुट मिले, और कहीं ना कहीं छोटा मोटा पार्ट टैक्स का भी आता है। सो आपके सामने कई बार ऐसे कस्टमर्स आए होंगे जो कि रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हमारे टैक्स का पार्ट बचा लीजिए, या कुछ फिगर्स है जिसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है। ऐसा कोई एक आपके पास में एग्जाम्पल आया हो तो वो आप शेयर करेंगे हमारे साथ। यस, एग्जाम्पल्स तो ऐसे बहुत आते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमें ऐसे अप्रोच करते हैं कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से आप इनएक्यूरेट फिगर्स डाल दीजिए, बट आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब इज टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज फाइल्ड करेक्टली बाय क्रॉस चेकिंग इंफॉर्मेशन, and we provide legible guidance कि everything has to be as per the letter and spirit of law. So we educate our clients on this as to why actually matters the most, and we work closely with them to ensure that they remain compliant with all these laws and regulations. डू अंडरस्टैंड, बट आप जिस प्रोफाइल पे हैं आपका ये मेन कर्तव्य है कि आपको 100% जो कंप्लायंस है उसको फॉलो करना है।
एग्जैक्ट बट कुछ आपके पास में क्लाइंट ऐसे भी आते होंगे कि मेरा 1 करोड़ रुपए का टैक्स बन रहा है, 10 या 20% आप लीजिए और बाकी सारा सेटल कर दीजिए। नहीं, इस केस में वी ओनली चूज द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ लॉ। वी कैन एक्चुअली हेल्प इन टैक्स प्लानिंग, बट वी नेवर सजेस्ट ऑन टैक्स अवॉइडेंस। आप प्लान करके उसको आप सेव आउट कर लीजिए, बट अवॉइड नहीं करिए, क्योंकि आज अगर आप अवॉइड करते हैं विद इन द नेक्स्ट 5 6 7 years, जैसे जैसे AI डेवलप होता जा रहा है, समथिंग विल बैक ट्रैक टू यू, एंड देन आपको जो इश्यूज आएंगे वो कोई आपको कभी नहीं बचा पाएगा उस टाइम। जो आपने बचाया उससे ज़्यादा आप शायद लूज़ आउट कर दोगे इन द फ्यूचर। सो सो दैट मीन्स दैट्स आप नेवर नेवर अ पॉइंट। यस, दैट मीन्स यू आर सेइंग कि हमें टैक्स देना ज़्यादा अच्छा है। एग्ज़ैक्टली। अगर आप देखते हैं तो टैक्स प्लान करके आप अपने टैक्स बचा सकते हैं। बट आप टैक्स अवॉइड करके अगर आप चाहते हैं कि हाँ, हम यहाँ से टैक्स हेवन ढूँढ लेते हैं या कुछ करते हैं, तो दैट वुड नेवर कम आउट राइट। ओके। और मैं आपकी बात नहीं करूँ, बट मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि शायद ऐसे एक्टिविटीज करते होंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या स्टेप्स होते हैं कुछ सीए या सीएस के अगेंस्ट में, थोड़ा सा वो आप बताएंगे मुझे? दे आर एक्चुअली फाइंडिंग आउट, काफ़ी सारे ऐसे क्वेरीज कमिटीज़ बैठती है जो क्वेरीज लगाती है, हाउ कुड यू फाइल दिस फॉर्म। दिस इज फॉर एन एग्जांपल, चाइनीज क्लाइंट्स के लिए काफ़ी इश्यूज हुए थे बीच में। 2020 के आसपास बहुत सारे लोगों को नोटिसेस गए थे, एंड आई हैव एक्चुअली सीन पीपल विद दिस नोटिसेस, एंड उसके बाद वो परेशान होते थे कि हमने 4 पैसे कमाने के लिए ये काम तो कर दिया था, बट आज हमारी डिग्री सरेंडर होगी। तो आप अगर अपने करियर पे कोई कलंक चाहते हैं तो आप ये काम ज़रूर करिए, अगर नहीं चाहते तो ऑलवेज़ बी कंप्लायंट विद लॉ। क्योंकि लीगल एस्पेक्ट्स आपको कभी चैलेंज नहीं देंगे अगर आपने सब कुछ लॉफुली करा। यू हैव ऑल द रिकॉर्ड्स, यू हैव एवरीथिंग इन योर डेटा दैट यू हैव बीन कंप्लायंट इन दिस। तो आप तब शायद अथॉरिटीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। आप रिट पिटीशन फाइल कर दीजिए कि अथॉरिटीज़ ने आप पर कैसे लगा दिया। तो आप एक मतलब बेटर स्टेप पे रहेंगे। rather than being at a backstep कि आप पर अथॉरिटीज़ ने केस करा और आपका डिग्री सरेंडर करवा दिया, आपका सीओपी सरेंडर हो गया एंड ऑल दैट। ग्रेट। सो श्रेयन, जैसे जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ, और पहले कैश बहुत ज़्यादा हमारे सामने कॉमन था इन टर्म्स ऑफ करेंसी, बट अब चीज़ें यूपीआई पे जा रही हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे जा रहा है। तो आपका इसके ऊपर क्या व्यू है कि क्या ये चीज़ें और सॉर्टेड हो रही हैं या फिर ये चीज़ें नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ मूव कर रही हैं? एक्चुअली अगर देखा जाए तो इससे लीगल कंप्लायंस काफ़ी ईज़ियर हो जा रहा है, क्योंकि अब सब कुछ डेटा आपके पास आ जा रहा है। पहले जब कैश की ट्रांज़ैक्शंस होती थी, यू कुड नेवर मोनेटाइज़ ऑन दोज़ ट्रांज़ैक्शंस, यू कुड नेवर ट्रैक दोज़ ट्रांज़ैक्शंस कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बट नाउअडेज़ लीगल कंप्लायंस हैज़ बिकम ईज़ियर बिकॉज़ ऑफ दिस, एंड मच मोर एफिशिएंट एक्चुअली। सो जो डिजिटल सिग्नेचर्स लगते हैं, ई-फाइलिंग्स होते हैं, सो यू कैन ऑलवेज़ कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग विद दीज़, एंड मोरओवर इससे ट्रांसपेरेंसी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अभी रिसेंटली मुंबई में एक गोलगप्पा सेलर था जिसको 40 लाख का इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, क्योंकि वो यूपीआई पे पेमेंट लेते थे। तो गवर्नमेंट फाइलिंग्स आर एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं टू मैनेज ऑल दोज़ थिंग्स कि आपका पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक, एंड ये आपके लिए भी ईज़ियर है टू ट्रैक ऑल योर एक्सपेंसेस एंड मैनेज एवरीथिंग वेरी वेल। गोलगप्पे का नाम लेकर के आपने इस समय गोलगप्पे खाने का माहौल बना दिया है। सो आप ये बताएंगे क्या उस गोलगप्पे वाले ने 40 लाख रुपए टैक्स चुकाया या नहीं चुकाया? उसके ऊपर केस तो हुआ है, अब जैसे-जैसे केस की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेगी तो चीज़ें खुलेंगी, तो वी वुड एक्चुअली अंडरस्टैंड इट बेटर। अरे वाह! क्या बात है। सो आपसे ये बात करके नई बात पता चली कि गोलगप्पे वाले का 40 लाख रुपए का टैक्स ड्यू है। एग्ज़ैक्टली, तो टर्नओवर आप सोचिए कितना ज़्यादा है उन लोगों का। अंडरस्टूड। सो श्रेयन, नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं कि काफ़ी सारे बिज़नेसेस और जो बिज़नेसमैन होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं। फाइनेंस की नॉलेज होती है, अकाउंट्स की नॉलेज होती है। स्टिल दे हायर सीए, सीएस। सो वो ऐसा क्या एक इम्पोर्टेंट मेजर पॉइंट है जिसके लिए वो सीए, सीएस को हायर करते ही हैं और वो आपकी सर्विसेज पे ज़्यादा रिलाय करते हैं? सो आजकल जैसे वी नो दैट द लॉ इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सो उसके लिए यू हैव टू बी अपडेटेड। आपको सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए कि कोई अगर आपको ये क्वेरी पूछता है तो आपको ये आंसर पता है कि हाँ, ये अभी रिसेंट लॉ में चेंज हुआ है। ये नहीं कि आप रेफर करेंगे, आप पढ़ के बताएँगे, वो वाला काम नहीं हो सकता। और बिज़नेस ओनर्स क्या करते हैं, दे कैन नॉट एक्चुअली मैनेज एवरीथिंग। अगर वो कॉन्स्टेंटली रेगुलेशंस को ही पढ़ रहे हैं, सब कुछ अपडेट रख रहे हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है एक्चुअली।
तो जिसका जो काम, वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। तो वो हमारे लिए वो वाला काम ईज़ियर है, क्योंकि हमें पता है सारे ट्रैक्स और रेगुलेशंस में क्या ट्रैक चेंजेस हुए हैं, सब कुछ है लीगल और टैक्सेशन के टर्म्स पे भी। तो वी आर अवेयर ऑफ दिस, एंड मेनी कंपनीज एक्चुअली स्ट्रगल टू मेंटेन ऑल दोस कंप्लायंसेस, क्योंकि ये पॉलिसी शिफ्ट काफ़ी रेगुलर होते हैं। So we actually stay on top of these changes, and we educate our clients based on this and ensure that their operations are always in line with these latest laws. सो आप लोग इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट। सो थोड़ा सा हम और हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में हमारी कंट्री का जो टैक्स है वो एक साल में इन टर्म्स ऑफ जीएसटी कह लीजिए या टोटल ओवरऑल टैक्स कह लीजिए, सरकार के पास कितना टैक्स जाता है? Hundreds and thousands of crores, basically. 1000 करोड़ इन अ ईयर। Yeah. More than 100 crores. और जैसे कोई भी प्रोफेशन होता है तो हर प्रोफेशन की कुछ ना कुछ ईज होता है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेसी होती है। सो आपके प्रोफेशन में वो क्या कॉम्प्लिकेसी है जो कि आपको कई बार ट्रबल शूट करने में चैलेंज क्रिएट कर देती है? Interpretation of law. कभी-कभी लॉ में ऐसा लिखा होता है कि आपको लगेगा कि लॉ ये कह रहा है, बट एक्चुअली वो कुछ और कह रहा है। तो वो जजमेंट से ही एक्चुअली क्लैरिटी मिलती है कि वो कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जज के सामने 2 वकील आर्ग्यू करते हैं, वो दोनों के पॉइंट वैलिड हो सकते हैं, बट ओनली द जज हैज़ द नॉलेज टू अंडरस्टैंड कि वो कौन-सी डायरेक्शन में उस चीज़ को वैलिडेट करना चाहते हैं। सो लीगली काफ़ी इन सब में एम्बिग्विटीज़ आ जाती है, अगर वो लिखते हैं कि ये लाइन में ऐसा है, इस सेक्शन में ऐसा है। But how you interpret that is a challenging thing. सो आपके साथ अगर ऐसी कोई चीज घटित हुई है तो हम उसको जरूर सुनना चाहेंगे। वो तो कोर्ट रूम बैटल्स तो होते ही रहते हैं सबके साथ। कोर्ट रूम स्ट्रगल्स तो सबका ही चलता है। ग्रेट। सो आपकी फील्ड में आगे क्या क्या और ऐसे स्कोप्स हैं जो कि हम लीगल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं? स्कोप तो काफ़ी है, एवर चेंजिंग लॉ है तो स्कोप तो बढ़ता ही जाता है। एंड विद एआई थिंग्स आर बिकमिंग ईजियर, आपके ड्राफ्ट्स को भी काफ़ी वो स्ट्रीमलाइन कर देता है। तो उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं एआई की वजह से। ओके। और मेरा एक सवाल रहेगा आयुषी और शेयर दोनों से कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में और भी ऐसे लोग हैं जो सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? So, what separates us from them is the ability to adapt to the challenging legal landscapes. So, कई लोग भूल जाते हैं कि हाँ ये रेगुलेशन आया है, ये आया है, वो आया है। दे सजेस्ट इनकरेक्टली, वो अपने क्लाइंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। क्लाइंट्स उसके बेसिस पे एक्ट करते हैं फर्दर, एंड देन दे फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। बट हेयर वी एट द लीगल ओएसिस वी हैव बेशन ऑफ एवरी recent legal change. So we have it on our tips ki if someone has this sort of problem, we know when exactly this regulation was changed, so we can give them forward thinking legal solutions based on that with strategy. अच्छा, आप मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा चार्ज करते हैं, कम चार्ज It's करते हैं? not related to competitors basically. It totally depends upon the services we are providing and the quality. Quality you means you can compare the quality, but you cannot compare the prices. जब क्लाइंट आता है तो इट डिपेंड्स कि उसकी नीड्स क्या-क्या है और हमारा टाइम इन्वॉल्वमेंट कितना है। तो यू विल नॉट फील कि कोट बहुत ज़्यादा रहेगा या फीस काफ़ी हाई रहेगी। आई हैव नेवर केम अक्रॉस एनी ऑफ द क्लाइंट एवर कि उन्होंने कहा हो योर फीस आर हाई। सो बेसिकली इट टोटली डिपेंड कि हम उन्हें क्या सर्व करते हैं। दे आर टोटली सैटिस्फाइड विद द सर्विसेज, या आपको फील नहीं होगा कि सर्विस की कॉम्पिटि अभी तक तो हमें ऐसे सुनने को नहीं मिलता। ऑल्दो मार्केट में ऐसे इंडिविजुअल्स भी रहते हैं कि वहाँ पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है 2000 में एंड यू आर चार्जिंग एक्स अमाउंट, बट उन्हें ये भी पता है कि इनकॉर्पोरेशन करने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी दे आर कमिंग टू अस ओनली। अब उन्हें ये चीज समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस क्वालिटी थिंग, क्योंकि वहां पर जब आपको सर्विस मिली तभी आप हमारे पास बाद में आए हैं इनकॉर्पोरेशन करने के बाद। तो दैट इज द डिफरेंस। ऑल्दो चार्जेस कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में हर तरीके के लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि हम सबसे ही ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी। इफ वी आर गिविंग टाइम तो अकॉर्डिंगली वो चार्ज होता है। इट इज नॉट मोर देन दैट। क्वालिटी मैटर्स, मनी डजंट, राइट? क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। उससे उससे ज्यादा मतलब अगर आप बात कर रहे हैं कि यू नीड टू
build trust with your client, you need to build relationship with your client. तो उसके लिए टाइम एंड एफर्ट्स बहुत ज्यादा जाते हैं, तो आप नहीं उस चीज को क्वांटिफाई कर सकते कि फीस ज्यादा होगी, एंड दैट एवरी क्लाइंट फील दिस. सो आप लोग आपकी सर्विसेज ऑफलाइन प्रमोट करते हैं आज तक या ऑनलाइन प्रमोट करते हैं? नहीं, इट्स बेसिकली वर्ड्स ऑफ माउथ. हमने ऑनलाइन भी ट्राई किया है प्रमोशन, बट साथ के साथ ऑफलाइन और रेफरल से बहुत ज्यादा रहता है. तो प्रमोशन ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, बट इट इज नॉट जस्ट लाइक कि हम सिर्फ ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही प्रमोट कर रहे हैं. सो हाउ यू प्रमोट ऑनलाइन? Online on social media platforms, we do have websites as well. लीगल ओएसिस की वेबसाइट है, और साथ के साथ हमारा ऑनलाइन डिफरेंट इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक एज वेल, वी आर प्रमोटिंग, एंड वी आर ऑल्सो राइटिंग सम articles on some topics where we promote them on different legal websites. ओके. सो आप लोगों का यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन पॉइंट क्या रहता है बिजनेस का? Okay, USP for me, building relationship and building trust with the client so that he can stay in the long run with us. Because without trust, you cannot hold a client. उनको जब तक आपको Exactly. क्योंकि जब आप किसी को लीगल एडवाइस देते हैं ना, मे बी एट टाइम्स उनके फेवर में नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि दूसरा तो मुझे बोल रहा है कि हो जाएगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट. आपको अपने क्लाइंट को ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा टू मेक हिम टू बी विद यू इन द काउंटर. दैट्स द होल थिंग. क्योंकि जब आप प्रोफेशनल मार्केट में डील कर रहे हैं ना, आप सिर्फ मॉनेटरी बेसिस पर नहीं जा सकते कि हाँ हम कम चार्ज कर रहे हैं इसीलिए आप हमारे साथ रुको, या हम आपको ज्यादा टाइम दे रहे हैं. दैट्स द होल थिंग कि जो हम आपको एडवाइस दे रहे हैं ना, यू नीड टू ट्रस्ट दैट एडवाइस, क्योंकि वो 2-3 लेवल पर चेक होकर ही क्लाइंट तक जाती है. वी हैव अ टीम ऑफ प्रोफेशनल एंड एवरीवन इज स्पेशलाइज्ड इन देयर कोर एरिया, जिसकी वजह से वो एडवाइस आप तक आई है. और उस अकॉर्डिंगली जो मेरे को ऐसा इसलिए लगता है कि बिल्डिंग ट्रस्ट इज द ओनली थिंग यू नीड, यू डिफरेंशिएटिंग अस फ्रॉम द मार्केट. एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर आप एक कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो सबसे भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका रिलेशन बिल्डिंग यस, डेफिनेटली. एंड ट्रस्ट. Yes, it's all about fiduciary relationship. Yeah. यस यस, एग्जैक्टली. और आपका जब फोर्टे ही फाइनेंस है तो वो तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आता है. एग्जैक्टली. राइट. सो आयुषी एंड श्रेया, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना ही होगा. यस. तो एआई आपके इंडस्ट्री में कितना इम्पैक्ट लाने वाला है, और क्या वो इम्पैक्ट पॉजिटिव वे में जाएगा या नेगेटिव वे में जाएगा? So everything basically has its own pros and cons. तो यहाँ पे pros में काम थोड़ा सा आसान हो सकता है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट रिव्यू कर सकता है आपका. कोई अगर ग्रामेटिकल एरर है कुछ है तो वो एनालिसिस करके आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सकता है, बट वो कभी ह्यूमन एक्सपर्टीज को रिप्लेस नहीं कर सकता because it's always artificial intelligence and human intelligence is much more superior than artificial intelligence. So वो आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी क्लाइंट इंटरेक्शंस, इन सब को कभी चेंज नहीं कर सकता. वो ह्यूमन माइंड ही है जो इन सब में उसको आउट परफॉर्म कर सकता है. सो एफिशिएंसी हाँ फॉर श्योर बढ़ा सकता है आपका एआई, और आपका टाइम थोड़ा सा फ्री अप भी कर सकता है इन दैट एस्पेक्ट, बट वो कभी आपके ह्यूमन इंटेलिजेंस को ओवर पावर नहीं कर पाएगा. दैट मीन्स यू आर श्योर ऑफ दिस. या एब्सोल्युटली. क्या बात है. सो नेक्स्ट 5 इयर्स में आप लोगों का क्या विजन है, कंपनी विजन, कि 2020 से कंपनी स्टार्ट किया था और आज 2025 चल रहा है. सो 5 साल में हम जीरो से लेके यहाँ तक आ चुके हैं. अगले 5 साल में हम कहाँ जाने वाले हैं? So we are now thinking on expanding our services globally. So we are targeting Singapore, US, UAE, UK. So we are already in talks with several basically service providers who can help us actually set up abroad. Yes. Means if someone wants to incorporate or set up a business in outside India, na, so we can also assist in those compliances as well. ओके. सो हैव यू फिक्स्ड एनी फिक्स्ड टारगेट या कोई ऐसा गोल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कि हमको ये अचीव करना है, या इतनी ब्रांचेस ग्लोबली ओपन करनी है, या इतना एक्सपेंशन करना है? At least 5 countries we'll have to set up branches in the next 5 years. Yes, including abroad as well. Yeah. That's out of these Oh. 5 branches. Yes. ग्रेट. सो एट लास्ट कोई ऐसा एक मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ सीएस, इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट लॉयर, कि उन लोगों को क्या चीज मैनेज और मेंटेन करनी चाहिए, और किस तरह से उनको चीजों को फिजिबल रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस फ्री रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, और कुछ गलत मत करना और सोचना भी मत.
सेकेंडली, अगर कोई भी लीगल या कंप्लायंस रिलेटेड कोई भी सर्विस का कोई भी क्वेश्चन हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, नेवर हेजिटेट टू रीच आउट टू अस. वी आर ऑलवेज अवेलेबल and we have our WhatsApp numbers on our website also. So do visit us on www.thelegaloasis.com. So you can actually help actually get the solutions and navigate across the legal maze that has been created. So do also read our blogs that they are recently posted also. So they will help you get updated also in the market. Ayushi, some words from you Great. also. Okay. So if someone is looking for fundraising and related activity and compliances in relation to those activities, means if someone is looking for funding as well. So we do have investors on board. We have in agreement with them. If someone is looking for investment, so we can help them out. And as Shreyan said, our WhatsApp number is available on the website as well. Someone can reach out to there as well. अमेजिंग अमेजिंग. सो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हमको मिली और हमारे व्यूअर्स को मिली. Thank सो you. आप लोगों का इस पॉडकास्ट शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो Thank मच.